small, in that case, focal length will be half of the radius of curvature. Sign convention we have seen, image diagrams, some rays we were discussing, we have done that, and also image formation also we completed, है ना? We completed the image formation also, है ना? Last one we were discussing, ये वाली छूट गई थी. देखो, कॉन्वेक्स में ओनली 2 टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन है ना. एक तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, रियल ऑब्जेक्ट, तो इमेज विल बी एट फोकल पॉइंट. यहाँ पर वर्चुअल एंड अदर साइड ऑफ द मिरर, पॉइंट इमेज एंड वर्चुअल, है ना. क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर? लेट अस सी. पॉइंट इमेज ऑन एफ, वर्चुअल एंड बिहाइंड द मिरर. नाउ इफ ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, तो उसमें क्या होगा? जो पैरेलल रेज हमने भेजी, दैट विल बी जस्ट डिफ्लेक्टेड and as if it is coming from the focal point. Other ray passing through the pole will be reflected in the same medium at same angle. Now these rays are going outward. ये इधर जा रही, ये इधर जा रही. Now they are not going to intersect this side in any case. So what we have to do, extend it behind, enlarge image like this. तो यहाँ पर ऐसे इमेज आएगी जहाँ पर extended rays are intersecting. So virtual image, virtual diminished, sir, highly erect, diminished वाला. highly diminished नहीं, diminished, virtual diminished, erect, highly diminished क्या दिख रही ना तुम्हें? Nearly half of the size. बहुत ज्यादा छोटी रहेगी ना सर? दिख रही है. ज्यादा छोटी कहाँ है? ये ऑब्जेक्ट है, ये है 50% दिख रही है. बहुत ज्यादा कहाँ छोटी? Diminished only, not highly diminished. Virtual diminished, erect and behind the mirror. Behind the mirror. इसमें बोल सकते हैं highly diminished. इसमें बोल सकते हैं focal point. Okay, just मैंने तो उसको वो कर दिया था. अच्छा, अभी वेटिंग है क्या? ओके, जस्ट लेट मी सी. आई जस्ट, अच्छा, ये वेटिंग रूम क्लोज नहीं किया क्या? आई थॉट आई हैव क्लोज्ड इट. ओके, so I'll just explain again. I'll explain again this last point. देखो, इसमें केवल 2 ही केसेस हैं. One object is at infinity, तो rays reflect, okay. They will reflect and as if they are coming from the focal point. इसमें बोल सकते हैं highly diminished, point image बन रही है, but not here. इसमें क्या होगा? Ray going parallel will be just deflected as if it is coming from focal point. Going to the pole will be reflected at same angle of incidence. Means angle of incidence is equal to angle of reflection. Now this ray is going in this direction, this is going in this direction. No chances of intersecting each other. What we have to do, we have to extend them backward. Backward extension जो है जहाँ पे intersect करेगा, here it will be the virtual image. Here it will be the virtual image. It will be diminished, erect and virtual. इसको हम देख तो सकते हैं. Suppose you are standing here, you can see yourself of shorter image. Your height will decrease here and you will be standing erect, but cannot be shown on the screen. यहाँ पे अगर तुम suppose कोई white paper लगा दो पीछे या screen लगा दो, तो तुम्हारी image वहाँ पे आएगी नहीं. Rays are not actually reaching here. Rays are this side, but you can see yourself standing with a shorter and erect image. Convex mirror के सामने कभी खड़े होकर देखो तो दिखता है, ऐसा छोटी इमेज दिखती है. You go to Raman Science Center, वहाँ पे ये सब लगे हुए हैं, convex mirror, concave mirror, है ना, infinite images, parallel mirrors are like that.
law of reflection you can just see there beautifully. तो छोटी इमेज दिखती है वहां पर, जैसे जैसे पास में आएंगे तो थोड़ी बड़ी होती जाएगी, ऐसे बिल्कुल टच हो जाएंगे यहाँ पे तो इट विल बी ऑफ योर साइड. इनफाइनाइट पे जब है तो पॉइंट इमेज है, यू मूव दिस साइड, image will move this side. Object will be moving faster. Object को infinite से यहाँ पर आना है, image को focal point से यहाँ पे आना है. तो object speed is fast, image speed is slow. है ना? One more clue I gave you. एक और clue दिया था, क्या था वो, कि हमेशा focal point and pole के बीच में आंसर आएगा v का. Let it be u anything in this case. U anything in this case except infinitive. Infinitive पे focal point आ जाएगा. और other cases में let it be any position of the object, image will be between pole and focal point in case of real object in front of the convex mirror. Convex mirror में real object के लिए image is between the focal point and pole and positive रहेगा, v हमेशा positive आएगा. और फोकल पॉइंट के अंदर, फोकल लेंथ के अंदर ही आंसर आएगा, मतलब फोकल लेंथ अगर 10 है तो v will be less than 10. Clear? Now things will be easier to numerical easy हो जाएंगे अगर तुम्हें ये just if you remember all the point. देखो यहाँ पर हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन, है ना, यहाँ से देखो शुरू किया, इनफाइनाइट पे है तो फोकल पॉइंट पर, फिर बिटवीन इनफाइनाइट Hello, sir.
Can you hear me now? Yes, sir. There is some issue. Okay, I'm host now. ठीक है. Can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो मिरर फार्मूला हम लोग देख रहे हैं. ये पीछे मैंने वही एक्सप्लेन किया था. यहाँ तक हो गया था ना? Yes, sir. This was done. Okay, मिरर फार्मूला हम लोग स्टार्ट करें. देखो मिरर फार्मूला यू नो, उसके डेरिवेशन देखते, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से डेरिवेशन है. देखो ये सब इंट्रोडक्शन देना है, पहले कॉनकेव मिरर बना लेना है. यू क्या है? ये पी बी ऑब्जेक्ट पोजीशन. वी क्या, यहाँ पे इमेज बन रही, देखो पी बी डैश इज द इमेज पोजीशन जिसको वी सिंबल दिया. एफ इज द फोकल लेंथ, ये पी एफ. ए बी इज द ऑब्जेक्ट, ये ई डैश बी डैश इज द इमेज, है ना. तो ये पहले हम लोगों ने ये वाले ट्राइंगल लिए. देखो रेड से मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला और ये वाला. ये एंगल अपोजिट एंगल हो गए और ये 90. इसमें स्मॉल अपर्चर में ये 90 आता है. देखो थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा. फिर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से उनके साइड के रेशो, ए डैश बी डैश वर्टिकल साइड का रेशो should be equal to horizontal side का रेशो divided by MP, this by this, and this ratio by this ratio, which is FB dash upon FP. ये वाला वर्टिकल साइड का रेशो हॉरिजॉन्टल साइड के रेशो के बराबर इन these two similar triangles. एफ बी डैश जो है ना, ये एफ बी डैश. ओके, बी डैश थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा है, इसको मैं बी कर दूं. हाँ, बी डैश जो है ये डिस्टेंस है. इसको क्या करेंगे हम लोग, दिस डिस्टेंस विच इज पी बी डैश माइनस ये वाली डिस्टेंस पी एफ, क्योंकि यहाँ बीच की मेजरमेंट तो हमें तो पोल से लेने हैं डिस्टेंस, तो पोल के टर्म में कन्वर्ट करें. दिस माइनस दिस, तो ये आ गया. और नीचे तो एफ पी था, ये तो सही है, पोल से ये डिस्टेंस, तो पोल से कन्वर्ट कर लिया इसको हम लोगों ने. एक रिलेशन ये हो गया इक्वेशन 1. अभी कौन से सिमिलर ट्राइंगल लेंगे? ये वाले बड़े वाले, इस वाले. एक ए बी डे ए डैश बी डैश पी और ए बी पी, ये वाले अभी दिख रहा है क्लियर. ये भी सिमिलर है. देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये इक्वल टू दिस, आई इक्वल टू आर, ये 90, तो थर्ड एंगल भी इक्वल है. तो सिमिलर ट्राइंगल, अभी इनके वर्टिकल का रेशो, वर्टिकल साइड का रेशो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और ये हॉरिजॉन्टल पी बी डैश अपॉन पी बी, हॉरिजॉन्टल का रेशो. तो ये इफ यू सी लेफ्ट साइड दोनों की, ये वाली 1 and 2 की लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड को इक्वेट कर दिया. दिस शुड बी इक्वल टू दिस, शुड बी इक्वल टू दिस, मतलब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी ए डैश बी डैश की. तो ये आ गया अपना बी पी डैश अपॉन बी पी, और ये वाला ये टर्म यहाँ आ गया. अभी इनके साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देंगे. देखो बी पी डैश क्या है, यहाँ पे देखो बी पी डैश इमेज की पोजीशन है माइनस बी, लेफ्ट साइड में है सब, और नीचे वाली यू पी बी यू वो भी माइनस, और पी बी डैश फिर से माइनस, पी एफ भी माइनस, सब माइनस है इसमें. देखो ये भी माइनस है, माइनस एफ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे माइनस एफ. तो सारे इसके कॉनकेव मिरर में सारे सब सामने ही है. देखो यू वी एंड एफ मिरर के सामने की पोजीशन सारी माइनस होती. ऑलराइट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इसको इधर और इसको इधर, तो ये आ गया इक्वेशन.
और इसको हमने u v वाला टर्म एक साइड में रखा और बाकी इधर भेज दिया। तो u v वाला टर्म इसलिए एक साइड में रखा कि अभी हम डिवाइड करने वाले u v f से, तो u v f से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, u v कैंसिल तो 1/f, इसमें v एंड f कैंसिल हो जाएगा तो u बचेगा यहाँ पे, इसमें u एंड f कैंसिल हो जाएगा तो v बचेगा। तो ये बचा अपना 1/v प्लस 1/u, आगे शिफ्ट कर लिया इसको, इज इक्वल टू 1/f, f इज इक्वल टू r/2 होता है। दिस इज द रिलेशन लेफ्ट। ये न्यूमेरिकल में काम आएंगे अपने। और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो उसमें भी सेम आएगा। लेट अस सी, कॉन्वेक्स मिरर में देख लेते हैं, देन यू नोट डाउन इफ यू वांट। पहले कॉन्वेक्स का भी देख लो, इसमें कैसे आएगा। इसमें भी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, u हो गया माइनस u हो गया, इमेज पीछे बन रही है प्लस v हो जाएगा, फोकल पॉइंट भी इसका बिहाइंड है तो प्लस v हो गया, प्लस f हो गया। अभी कौन कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं, a डैश b डैश c, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, एक ये और ये a बड़ा वाला। तो इसमें भी वर्टिकल साइड का रेशियो a डैश b डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल का ये b डैश c, ये वाला डिस्टेंस अपॉन ये वाला डिस्टेंस। तो b डैश c बीच में से है, अभी इसको क्या करना है, पोल से कन्वर्ट करना है, दिस माइनस दिस, तो pc माइनस pb डैश, और ये वाले डिस्टेंस को प्लस करके लिखना पड़ेगा। एक तो p, ये एक तो pb है ये, और इधर से pc, ये दोनों ऐड कर देंगे तो pb प्लस pc। तो ये इक्वेशन 1 हो गई बड़े वाले ट्राइंगल्स में। अभी और कौन से ट्राइंगल लेने हैं, ये वाले ABP, ये वाला, और दूसरा ये A डैश B डैश P, ये भी सिमिलर होंगे। तो ये एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि ये I इज इक्वल टू R होता है, और ये अपोजिट एंगल आ गया इधर से, कैन यू सी, ये वाला, ये एंगल और ये एंगल अपोजिट है तो इक्वल होगा, और ये इसके बराबर होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, इसका मतलब ये और ये इक्वल होगा। ये 90-90, थर्ड एंगल भी, तो ये भी सिमिलर है, इसका भी वही रेशियो, वर्टिकल साइड का रेशियो a डैश b डैश अपॉन ए बी यहाँ पर, और ये तो दोनों पोल से ही डिस्टेंसेस है, दिस अपॉन दिस, pb डैश अपॉन pb, ये तो पोल से, फिर से वो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ये तो pb डैश अपॉन pb, और ये एज इट इज आ गया पूरा। तो ये साइन कन्वेंशन में पुट कर दिया, pb डैश इज v, राइट साइड में प्लस, और pb इज u, लेफ्ट साइड में माइनस, pc राइट साइड में 2f है, pc इज इक्वल टू 2f, r के बराबर है, r के टर्म में भी लिख सकते हैं, और pb डैश इज v प्लस v, तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा। pb इज अगेन लेफ्ट साइड में u माइनस u, ये 2f के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गई रिलेशन, इसको uvf से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर u बचेगा, यहाँ पर v बचेगा, और यहाँ पर uv है तो f बचेगा, सेम रिलेशन आता है। बट डायग्राम थोड़ा अलग है ना, ये डेरिवेशन कोर्स से अभी नहीं है तुम्हारे उसमें, दे आर रिमूव्ड फ्रॉम दिस ईयर के कोर्स को जो शॉर्ट किया है ना, उसकी वजह से ये डेरिवेशन हटा दिए। इट्स अप टू यू। So sir, directly we पहला can डेरिवेशन, class now. हाँ डायरेक्टली न्यूमेरिकल आएंगे, और क्या, नो डेरिवेशन इज देयर तो न्यूमेरिकल्स आएंगे। फिर भी मैं एक बार और क्रॉस चेक कर लूंगा, कुछ चेंजेस तो नहीं किए उन्होंने, आई थिंक बढ़ा तो नहीं सकते, वो डिलीटेड पार्ट में है ये दोनों डेरिवेशन। फिर भी यू कैन टेक स्नैपशॉट अगर कुछ चेंजेस हुआ तो, ठीक है। ये डेरिवेशन एंड ये दोनों सेम है, दो बोथ आर जस्ट डिलीटेड। ठीक है, इजी टू रिमेम्बर, सेम फार्मूला है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और f इज इक्वल टू r/2। ठीक है, तो नाउ इसके और पॉइंट सीखते हैं हम लोग, लेट अस लर्न सम मोर पॉइंट। देखो एक तो v, बहुत बार v निकालने के लिए आता है ना, अगर हम एलसीएम ले लें, ओके, f निकालने के लिए आया तो एलसीएम लेके पहले ही रख लिया, है ना,
वैसे तो जरूरत नहीं है, यू आर मैथ्स इतने कैलकुलेशन तो आने चाहिए। और v के लिए पहले से अगर पहले एलसीएम लेके फिर वैल्यू पुट की तो मिस्टेक कम होती है ना। इट्स अप टू यू, आर यू जस्ट रिमेंबर दिस ओनली, ज्यादा बर्डन नहीं। देखो सिंस सेम रिलेशन इज देयर फॉर बोथ द मिरर्स, दोनों के लिए सेम है, therefore we have to use the sign convention again। डेरिवेशन भी साइन कन्वेंशन से किया है, but again it is same for both the mirrors। एक मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, एक में पॉजिटिव होती है, तो therefore we have to be careful, we have to use the sign convention again। all numericals में साइन कन्वेंशन लगाना है, ठीक है। तो ये फार्मूला जस्ट इजीली रिमेंबर्ड। ये क्वेश्चन मेरा ये देखो, ये सॉल्व करके यहीं पे दिखाना है। पॉइंट ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट डिस्टेंस, बोलते जाओ चलो, व्हाट आर द वैल्यूज गिवन, टेल मी। एक मिनट जस्ट आई विल शो यू। ओके, पहले मैं हाईलाइट भी करता जा रहा हूँ। पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15। व्हाट इज दिस वैल्यू? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिखे यहाँ पे बोलो? u इज इक्वल टू -15। माइनस लिखना जरूरी है, प्लस नहीं लिखना है, या नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। रियल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज केप्ट मींस रियल ऑब्जेक्ट, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए u माइनस, उसके बाद फ्रॉम द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20। तो ये क्या लिखे बोलो? b is What equals is to this? 20। क्या लिखे, क्या है ये? b is व्हाट इज equals दिस? v नहीं है, फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर, to sorry focal। रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये। क्या होना चाहिए, क्या सिंबल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का? r कितना कितना 20 cm। कितना? 20 की कुछ और? कौन सा मिरर है? कॉनकेव है, कॉनकेव है -20। तो -20 हो जाएगा। therefore f will be -10 -40। -20 है। 40 कैसे माइनस? सर आधा करना है ना, आधा करना है, डबल नहीं करना है। फोकल लेंथ आधा होता है, हाफ होता है, ठीक है। आर इज बिगर, क्लियर। फाइंड फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, क्या निकलना है? v निकलना है, तो बस वैल्यू पुट कर दो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सॉल्व करके बताओ किधर है ना, बोलो। सर आपने 1/f इज इक्वल्स टू 2/r लिखा है, तो उस हिसाब से r इक्वल्स टू 2f होगा ना? r इज इक्वल टू 2f, तो f कितना हुआ फिर? f इज इक्वल टू r/2 हुआ कि नहीं? ओके, r इज इक्वल टू 2f, ठीक है। f इज इक्वल टू व्हाट? r/2, तो वही तो किया हमने, r/2। हाँ सॉरी आई गॉट कंफ्यूज। r की वैल्यू -20। देखो सॉल्व करके कितने आ रहे हैं? माइनस कितने? -10 है ये। थर्टी एलसीएम आ गया इसका, ये -3 प्लस 2 -1/30, therefore v is equal to -30 सेंटीमीटर। मतलब बिहाइंड और इन फ्रंट, सामने है कि पीछे? रियल और वर्चुअल? क्या इन फ्रंट ऑफ रियल बनेगा ना। तो ये कौन सा केस है? देखो, ये अगर हमने इतने डायग्राम ड्रा किए थे तो कौन सा केस है? फोकल लेंथ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ 10 है और रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तो दिस इज द केस। विच वन? ये वाला। फोर्थ केस है क्या? ये वाला देखो, f 10 है, मैग्नीट्यूड f का 10 है, ये 15 है, देखो ऑब्जेक्ट, और इमेज पीछे बन रही C 20 है ना, ये 10 है
ये 15 दिया है और ये 30 आंसर आ रहा है अपना सेंटीमीटर में। तो ये वाला केस है, बड़ी इमेज भी बनेगी। अभी हम लोगों ने इमेज लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं पढ़ा है, इसलिए हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं बड़ी या छोटी। नाउ एक और पॉइंट तुम्हें सिखाऊं, कैन यू टेल मी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर विदाउट सॉल्विंग, बिना सॉल्व कर। जस्ट सेकंड पार्ट देखो, ये रिपीट इफ द ऑब्जेक्ट इज एट 30 सेंटीमीटर। बिना सॉल्व करके बता सकते क्या इसका आंसर? चलो सॉल्व करके बताओ, फिर आई विल टेल यू विदाउट सॉल्विंग कैसे क्लियर निकलना था। रिपीट इफ ऑब्जेक्ट इज एट 30, प्रीवियस केस का ही रिपीट है, ये इसी क्वेश्चन का रिपीट है, सेकंड पार्ट। 15 रहेगा सर इसका आंसर। कैसे? हाउ? -15 सॉरी, हाउ? क्योंकि सर जो u है वो डबल्ड हुआ है। ओके ठीक है, देखो कितना आ रहा है पहले। अदर सर गेटिंग विद द फार्मूला। देखो विदाउट सॉल्विंग हम कैसे क्लू लगा सकते हैं, इससे आ जाएगा। देखो इफ यू पुट द वैल्यू, तो अपना u अगर 30 है, देखो ओके u इज 30 माइनस 30, f तो वही रहने वाला है, v निकालना है। तो फिर से फार्मूला वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू इन फार्मूला, तो ये आ जाएगा v विल बी 50 -15। आगे सबका Yes, sir. देखो Yes, sir. इसको देखो, इसमें कुछ नोटिस किया तुमने? देखो डायग्राम से दिखाता हूँ मैं, देखो डायग्राम से बताता हूँ। इसमें अगर ध्यान से देखें तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्स हो गई सिचुएशन। कौन सा केस था? फोर्थ। जब हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, सॉरी, जब हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, इमेज यहाँ पे आ गई। तो सपोज आप सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखोगे तो उसकी इमेज यहाँ बनेगी, इंटरचेंज है ना। फार्मूला में v एंड u इंटरचेंज हो गए, है ना। तो v और u इंटरचेंज हो गए, तो यहाँ पर जब यहाँ पर u है तो v यहाँ पर, और यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे इमेज। तो ये एक रिलेटेड आंसर मिलते हैं, मतलब कनेक्टेड रहते हैं ये आंसर एक दूसरे से, है ना। मिरर को थोड़ी पता लग रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये है या इमेज ये है ना। इट कैन बी ऑब्जेक्ट, इट कैन बी ऑब्जेक्ट। तो रे डायग्राम भी रिवर्स, मैंने बताया ना, रिवर्स कर दो। यहाँ पे अगर तुम प्लेन मिरर ले लो, परपेंडिकुलर लगा दो, तो थिंग्स विल रिवर्स। जैसे रे आएंगी रिवर्स हो जाएंगी, उसी पाथ को वापस जाएंगी। रिवर्सिबिलिटी से हम बहुत कुछ क्लू निकाल सकते हैं इसमें आगे चल के, है ना। तो क्लियर? जब ये u था तो ये भी मिला, अभी जब ये u है तो ये भी मिल जाएगा। बट उसकी जो इमेज साइज चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है। अभी जो सेकंड पार्ट क्वेश्चन दिया, बड़े ऑब्जेक्ट की जो भी ऑब्जेक्ट होगा इमेज छोटी आएगी। यहाँ पर सपोज ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इमेज इतनी बड़ी आएगी। ऑब्जेक्ट और छोटा हुआ तो इमेज और छोटी हो जाएगी यहाँ पर। अभी ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इमेज छोटी। उनकी जो साइज में डिफरेंस आएगा, बट लोकेशन में डिफरेंस नहीं आएगा। यू भी इंटरचेंज हो सकते हैं। गॉट इट? तो ये तुम्हें थोड़ा बहुत क्लू देगा आगे के लिए। नाउ आई एम गिविंग यू क्वेश्चंस एंड लीविंग। अभी मेरा दूसरा क्लास भी था इसके बाद, तो ये यहाँ पे समझ में आ गया आज का। तो क्वेश्चंस Yes. मैं तुम्हें दे रहा हूँ। एक ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो इसका स्नैपशॉट मैं एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ एक बार। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस इक्वल टू द focal point, equal to focal point of the mirror, focal length of the mirror, which is 10 centimeter for following cases. First one is the concave mirror. Concave mirror में object focal point के distance पर है, और second one is the convex mirror. Image कहाँ बनेगी? U is given है ना, this is U only. क्या दिया है? चलो नहीं सॉरी, ये फोकल है, F दिया है, और इसका U कितना दिया बताओ? क्या U is how much given? Half of the focal point. Object is at distance, sorry, equal to focal point, equal to focal point. हाँ, U का मैग्नीट्यूड भी 10 है। ओके, U का मैग्नीट्यूड भी, अभी मैं हाँ माइनस, अभी अच्छा दोनों में रियल है तो U में तो कोई कंट्रोवर्सी आई नहीं है ना, वो तो माइनस रहेगा। F तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा
कौन सा पॉजिटिव होता, कौन सा नेगेटिव होता? कॉन्वेक्स वाला पॉजिटिव एंड कॉनकेव वाला नेगेटिव। हाँ, तो उसके लिए नोट्स देख लो। तो ये होमवर्क है, ट्राई करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल, बोर्ड के लिए आ सकता है ऐसा, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस है। तो एफ जो है अपने आप डिसाइड करो किसका पॉजिटिव किसका, और सॉल्व भी अपने आप करो। यू विल गेट द इंटरेस्टिंग आंसर, 2 अलग अलग आंसर आएंगे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, देन विल वाइंड अप। आर यू Okay. देयर सर? यस यस, देखो ये क्वेश्चन जस्ट गो थ्रू, ट्राई टू डू योर सॉल्व एग्जांपल है। 9.1 देख लेना, कल मैं इसके बारे में कुछ बता दूंगा थोड़ा सा पॉइंट। ये आंसर उसको पढ़ने के बाद ये अटेंड कर सकते हैं, ये थोड़ा सा और बेटर क्वेश्चन है। लेट मी सी क्या लिखा है इसमें, ये लास्ट क्वेश्चन में। लेट मी एक्सप्लेन यू, थोड़ी सी हिंट भी दे दूंगा मैं इसकी। देखो, इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, यू कितना है? minus -30 30. सेंटीमीटर। माइनस ठीक है, एंड कॉन्वेक्स मिरर है ऑफ फोकल convex from the convex mirror, a plane mirror is placed at distance of 10 centimeter. Find the focal length of the convex mirror if images found by both the side. तो तुम्हें डाउट आएगा कि अगर हमने कॉन्वेक्स मिरर ऐसे रखा है, जस्ट रफ डायग्राम बना रहे, तो मैं रफ कर दूंगा इसको, तो बोलोगे इसके सामने अगर मिरर रख दिया ऐसा, तो फिर इमेज कैसे बनेगी? इमेज प्लेन मिरर पूरा सामने नहीं रखना है, ऐसे रख सकते हैं और ऑब्जेक्ट ऐसे रख सकते हैं। तो अभी दोनों, अभी ये भी अपनी इमेज बनाएगा, ये भी अपनी इमेज बनाएगा। डिस्टेंस देख लेना क्या क्या दिए। तो अभी जस्ट यूज योर कॉमन सेंस टू गेट देयर आंसर, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके सर। That's all from my side. You want to ask anything? Just 2-3 minutes. 3 minutes. Next. Want to ask anything? तो ये क्वेश्चन हो गया। ये जस्ट गो थ्रू 9.1। अगर हमने, चलो ये मैं क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ। सपोज ये मिरर है और इसको हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। आई डोंट नो क्वेश्चन, मैं पूरा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मे बी सेम और थोड़ा। यहाँ पे हमने उसको यहाँ पे ब्लैक पेंट लगा दिया, आधा मिरर रख दिया, आधा ही मिरर है। अभी ऊपर का या नीचे कहीं भी पेंट लगा सकते हैं, डजंट मैटर। ओके, एक मिनट ऊपर लगाते हैं। चलो, इसको पेंट कर दिया हमने, हाफ ऑफ द मिरर इज पेंटेड। इमेज बनेगी क्या? यस सर, बनेगी। बनेगी, हम लोग देख चुके हैं। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने नहीं भी होता है तभी भी इमेज बनती है, और पूरी इमेज बनती है, बट उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है ना। अगर ये सरफेस एरिया मिरर का बहुत ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी अच्छी रहती है। सरफेस एरिया अगर आधा हो गया मिरर का, उतनी ब्राइटनेस कम बनेगी, और जैसे पहले बन रही थी वैसे ही बनेगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ऐसे कहीं पर ऐसा यहाँ पर ही बनेगी वो, बट इंटेंसिटी कम रेज इन्वॉल्व होगी। अभी तुम बोलोगे ये रेज तो है नहीं, नीचे वाली तो है ना, ये है, इधर वाली है, वो डिफरेंट एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से डिफरेंट अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एक ही जगह आके इंटरसेक्ट करेंगी। ये वाली हो गई, और दूसरी ऐसा कुछ ऐसे आएगी वो, है ना। तो इमेज वैसे ही बनेगी बिल्कुल। सोच लो कि वही, ओनली ब्राइटनेस कम हो जाती है इफ यू कवर द मिरर पार्शियली। So I'll tell you more points in the next class. Just let me wind up now. ठीक है, चलो, थैंक यू। बाय सर। ओके, बाय।